JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 6, our natural resources, forest and wildlife, and this is my session number 5. So in my previous 4 sessions, we have already completed full explanation regarding this chapter. इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने 4 सेशंस में कंप्लीट कर ली है. सेशन 5 में we are going to discuss the exercise given in your textbook page number 301. But before I start discussing the exercise, let us have a quick recap regarding the topics which we have learnt in this chapter. So what did we learn in this chapter? Firstly, introduction part means what do you mean by natural resources? Because here our natural resources. So what are natural resources? Natural resources are those things which are found in nature. Naturally जो हमें nature से मिलते हैं उन चीजों को natural resources कहते हैं. Then types of natural resources. I told you there are 2 types of natural resources. One is exhaustible, which are non-renewable, and the other one is inexhaustible, which are renewable. So exhaustible and inexhaustible. Clear? Then we discussed regarding the forest resources, in which we discussed the benefits which we get from forest. Forest से हमें क्या benefits मिलते हैं, लाभ क्या मिलते हैं? Forest provide oxygen. Forest में trees है तो वो हमें oxygen देंगे. Then the roots of the trees hold the soil firmly and prevent soil erosion. Then improves the quality of the soil. Correct? जो forest में trees है वो वहाँ की soil की quality को improve करते हैं. They keep the surrounding areas cool. Then the land will not become dry if the trees are present over there. Then forest also provide with food, fruits, etc. Correct? Then they also provide furniture के लिए timber, ये सब provide करता है. Medicines बनाने के लिए भी forest के plants जो है वो useful है. Forest में से जो wood मिलता है it is used as a fuel for cooking. Cooking के लिए fuel की तरह हम use करते हैं उस wood को. Then it is a home for many birds and animals. Forest जो है it is a shelter. It provides shelter for many birds and animals. Then types of forest. कितने types के forest के बारे में हमने discuss किया था? 5. Evergreen, deciduous और monsoon forest, thorny and scrub forest, mountain forest या coniferous कह सकते हैं, tidal और mangroves. तो ये सारे अलग अलग types of forest है. एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स विच आर green throughout the year because all the trees will not shed their leaves at the same time. So these are evergreen because they are green throughout the year. Then deciduous or monsoon forest, as the name represents, ये फॉरेस्ट मॉनसून के टाइम मतलब बारिश के टाइम में फुल लग्जरियंट ग्रोथ होती है. वहां ट्री की बहुत ग्रोथ होती है ट्रीज की. सो इसे मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि मॉनसून मतलब रेनी सीजन में बहुत सारे ट्रीज ग्रो होते हैं. देन डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्री है सैंडलवुड ट्री विच इज फाउंड इन कर्नाटका. कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक में. बाकी के कौन कौन से हैं? टीक, साल, महुआ, ये सारे ट्रीज भी होते हैं. Then talking about thorny and scrub forest. So ये thorny and scrub forest desert regions में होते हैं. Thorny and scrub forest में trees like cactus grow there. Date palm सबसे important tree है जो यहाँ grow होती है. Date palm, बबूल, ये सारे के सारे trees यहाँ grow होते हैं desert में. So thorny and scrub forest because the trees are normally not having leaves, they are having thorns, कांटे लगे होते हैं. Then talking about mountain या coniferous forest. Mountain या coniferous forest के बारे में हमने क्या सीखा था? They are found on the hills. Hills and mountains में ही पाए जाते हैं.
स्पेशलिटी क्या है कि द ट्रीज आर हैविंग कोन शेप एंड द लीव्स आर नीडल लाइक लीव्स, नीडल जैसे लीव्स होते हैं, करेक्ट, सो दैट द स्नो विल नॉट स्टे ऑन इट, अदरवाइज इट माइट डाई. देन लास्टली टॉकिंग अबाउट द टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर. Special tree found here is the Sundari tree and it is found in Sundarbans in West Bengal. Sundarbans जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर ये सुंदरी ट्री पाया जाता है. बाकी के टाइडल फॉरेस्ट बांग्लादेश में भी है. Then we discuss regarding the conservation of forest. Conservation का मतलब क्या है? फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि हम फॉरेस्ट को कट करके we are cutting down the trees for our benefit, for wood, for fuel, etc., for medicinal point of view, and even sometimes just to clear the land to construct building. हम ये फॉरेस्ट के ट्रीज को कट कर रहे हैं, and cutting down of the trees on a large scale is called deforestation. बहुत सारे ट्रीज को अगर हम कट करते हैं तो इस प्रोसेस को डिफोरेस्टेशन कहा जाता है. तो ये डिफोरेस्टेशन नहीं करना है, कंजर्व करना है फॉरेस्ट को, मतलब प्रिवेंट करना है, बचाना है फॉरेस्ट को. फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन फ्यू स्टेप्स. वन ऑफ देम इज वन महोत्सव, एक है वन महोत्सव एंड अदर वन इज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. ये दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट. Then we discuss regarding the wildlife resources. Wildlife resources में जो है फॉरेस्ट के जो बर्ड्स, एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में हमने सीखा था. यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीजें हमने सीखी थी. एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेक्ट, और दूसरा क्या था? एक था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहां पर आप अलग अलग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, करेक्ट. एंड दूसरा है यस दे आर नेचुरल रिजर्वायर्स. तो ये जो है वो एनिमल्स एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है या नेशनल पार्क्स होते हैं, नेचुरल रिजर्वायर्स भी कहते हैं. तो ये इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पाए जाते हैं. यहाँ पर हमने इंडिया में कितने नेशनल पार्क है इसके बारे में भी डिस्कस किया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कस किया था. सो today's session we will discuss the exercise regarding this chapter. I hope you all have read the chapter once, because while discussing the answers it will be easier for you if you have read the chapter. आंसर्स जब हम डिस्कस करेंगे तब अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको अपने आप आंसर्स आ जाएंगे. इन एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन लाइक मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर, अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विथ मैच द फॉलोइंग. इट इज देयर इन पेज नंबर 301 इन योर टेक्स्ट बुक. I want you to tick the answers with the help of pencil in your textbook along with the video. वीडियो के साथ साथ जैसे मैं डिस्कस करती जाऊँ आप पेंसिल की हेल्प से अपनी टेक्स्ट बुक्स में आंसर टिक कर लीजिएगा. क्लियर? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ मैच द फॉलोइंग. आई एम रीडिंग कॉलम ए. नेचुरल रिसोर्सेस, बी inexhaustible resources, C India, D evergreen forest, E Gir. Now talking about column B, number 1 a national park, number 2 1/5 of land under forest, number 3 found in nature, number 4 renewable resources, number 5 green throughout the year. Now let us discuss the answer. Column A natural resources.
कॉलम ए में ए है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज. आंसर इज कॉलम बी, ऑप्शन 3, फाउंड इन नेचर. फाउंड इन नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो नेचर से मिलता है. सो आंसर इज फाउंड इन नेचर. सो मैच ए विद नंबर 3. नेक्स्ट बी, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो कभी खत्म नहीं होते हैं. सो आंसर इज कॉलम बी, ऑप्शन नंबर 4, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है. सो यू विल मैच बी विद नंबर 4. नेक्स्ट कॉलम ए सी, इंडिया. कॉलम ए सी, इंडिया. आंसर इज कॉलम बी, ऑप्शन नंबर 2, 1/5 ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट. क्योंकि इंडिया में 1/5 लैंड जो है वो फॉरेस्ट के अंडर कवर होती है. सो इंडिया 1/5 ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट. सो यू विल मैच सी विद नंबर 2. नेक्स्ट डी, एवरग्रीन फॉरेस्ट. कॉलम ए, ऑप्शन डी, एवरग्रीन फॉरेस्ट. आंसर इज कॉलम बी, ऑप्शन नंबर 5, ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एवरग्रीन का मतलब है ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. सो यू विल मैच डी विद नंबर 5. नेक्स्ट कॉलम ए, ऑप्शन ई, गिर. आंसर इज कॉलम बी, ऑप्शन नंबर 1, अ नेशनल पार्क. अ नेशनल पार्क क्योंकि गिर क्या है? नेशनल पार्क है. सो यू विल मैच ई विद नंबर 1. लेट अस डिस्कस द आंसर वंस अगेन. एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं. मैच ए विद 3, बी विद 4, सी विद नंबर 2, डी विद नंबर 5 and E with number 1. Now let us move to the next question, that is true or false. So write T for true and F for false. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो T लिखोगे, फॉल्स है तो F लिखोगे. ओके. A, natural resources can be divided into 3 types. नेचुरल रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. नो, ओनली 2 टाइप्स, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल. करेक्ट. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो राइट F. यू विल राइट F. नेक्स्ट बी, trees and plants give us oxygen to breathe. Trees and plants give us oxygen to breathe. Is it true? Yes, it is true. So write T. Next, C. Evergreen forests are also called monsoon forest. Evergreen forests are also called monsoon forest. Evergreen forest को monsoon forest कहा जाता है? No. Monsoon forest किसे कहते हैं हम? Monsoon forest किसे कहते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट को मॉनसून कहते हैं? नो, मॉनसून फॉरेस्ट और डेसिडियस. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो राइट F. नेक्स्ट D, deciduous forests are also called mangroves. deciduous forest को mangroves कहा जाता है? नो, mangroves तो tidal forest को कहते हैं. So this statement is also false. So write F. Next E, there are 49 tiger reserves in India. इंडिया में 49 टाइगर रिजर्व्स है? नो, 39 है. कितने हैं? 39. So this is also false. So write F. So now let us look into the answers once again. A is false, B is true, C is false, D it is false, E is also false. So we have discussed this question. Now next choose the correct answer.
They have given few statements or blanks. The options to these answers to these blanks are given below in options. You have to select which is the correct answer. So shall we start? Okay. A. Air is dash. Air is dash. Options are a renewable resource. Number 2, a non-renewable resource. Number 3, an exhaustible resource. Number 4, none of these. रिन्यूएबल का मतलब जो रिन्यू हो जाता है, यूज करो फिर भी नेक्स्ट रिन्यू हो जाएगा. नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर से रिन्यू नहीं होगा तो उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. देन एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाता है. एंड नंबर 4 में है नन ऑफ दीज. तो आंसर क्या आएगा? यस, इट इज ऑप्शन 1, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आप जितना भी एयर यूज करो वो रिन्यू हो जाता है. तो आंसर इज, इट इज, एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. सो ए आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, बी. इन deciduous forest, trees shed their leaves during dash. deciduous forest में trees कब leaves को shed करते हैं? Answer options are monsoon, spring, autumn and the dry season. Yes, क्योंकि deciduous forest को monsoon forest भी कहा जाता है. इसका मतलब है monsoon में तो trees grow करते हैं. तो trees shed कब करते हैं leaves? जब dry season हो, जब वहां पर बारिश नहीं होती है. So answer is option 4, the dry season. The dry season. Next, C. Kikar is a type of dash. Kikar क्या है? Options are coniferous tree. Number 2, deciduous tree. Number 3, evergreen tree. Number 4, thorny tree. Answer is number 4, thorny tree. Next, D. A tree which grow in mangrove is. Mangroves में कौन सा ट्री ग्रो होता है? Options are pine, teak, sundari, shisam. Answer is number 3, sundari. Next, E. Wildlife sanctuaries have been created to protect dash. वाइल्ड सेंचुरीज को किसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस आर एनिमल्स, बर्ड्स, बोथ ऑफ दीज एंड पीपल. आंसर इज बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 3 कि एनिमल्स एंड बर्ड्स दोनों प्रोटेक्ट हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. क्लियर? सो लेट अस चेक द आंसर वंस अगेन. A, answer is number 1. B, answer is number 4. C, answer is number 4. D is answer number 3. E, the answer is number 3. Now let us discuss the next question. Unscramble the letters to form the correct words. So here they have given you few statements. And the answer to these statements are given in the bracket, but the letters are in the jumble form. What you have to do? You have to arrange these letters correctly and find the answers. So shall we start? Okay. A. A type of natural resource. A type of natural resource. Natural resource की एक type है. Which is it? नेचुरल रिसोर्सेज में 2 टाइप्स है, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल. तो ये स्पेलिंग जो है वो अरेंज करके देखो, आपको एग्जॉस्टिबल वाला मिलेगा या इनएग्जॉस्टिबल. यस, द आंसर इज एग्जॉस्टिबल. सो ए आंसर इज एग्जॉस्टिबल. नेक्स्ट, बी. अ टाइप ऑफ ट्री
फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। ये एक ट्री है जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो होता है। विच इज इट? आंसर इज बबूल। बबूल। नेक्स्ट सी, कटिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज को कटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यस, द आंसर इज डिफॉरेस्टेशन। आंसर इज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट डी, अ प्रोग्राम टू प्लांट मोर ट्रीज। गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम ट्रीज को प्लांट करते हैं, ग्रो करते हैं। विच इज इट? आंसर इज वन महोत्सव। आंसर इज वन महोत्सव। ई, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। असम में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम है ये। आंसर इज मानस। मानस। So let us check the answers once again. A, answer is exhaustible. B, answer is babool. C, answer is deforestation. D, answer is Van Mahotsav. And E, answer is Manas. Now let us discuss the next question. That is, answer the following questions. Now put your pencils down. And I am going to discuss these answers. You have to listen to the answers carefully so that you will have no doubts. When I am sending the PDF of CW along with this video, you have to write all these questions in your CW along with answer the following question. तो ये बाकी के जो आपने टेक्स्ट बुक में टिक किए है ना, वो भी सारे के सारे आपको CW में लिखने हैं। क्लियर? तो नाउ मैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स डिस्कस करूंगी और आप उन्हें केयरफुली यू विल लिसन टू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन ए, व्हाई आर कोल एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कोल और पेट्रोलियम को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है? आंसर इज coal and petroleum are non-renewable resources because they are limited and reduced in quantity as they are used. क्योंकि वो नेचर के अंदर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और जैसे जैसे यूज करते जाओगे वो रिड्यूस होते जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट आर फॉरेस्ट? हाउ आर दे यूजफुल टू अस? फॉरेस्ट का मतलब क्या है और फॉरेस्ट हमें किस तरह से यूजफुल है, किस तरह से हमारी मदद करते हैं? यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी बुक में, बट मैंने कुछ पॉइंट्स ही यहाँ पर लिए हैं। आंसर इज, फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जिसमें बहुत सारे ट्रीज ग्रो होते हैं, उस एरिया को फॉरेस्ट कहेंगे। They provide oxygen, prevent soil erosion, keep an area cool and provide fruit and food. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं और भी बहुत सारे हैं, मगर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ही लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट आर टाइडल फॉरेस्ट? टाइडल फॉरेस्ट किसे कहते हैं? टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ मेजर रिवर्स। टाइडल फॉरेस्ट मेजर रिवर्स के डेल्टा एरिया में पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव्स। इन्हें मैंग्रोव्स भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड द ट्रीज हैव हार्ड वुड। ये बहुत घने डेंस फॉरेस्ट होते हैं एंड वुड जो है ट्री का वो बहुत हार्ड होता है। द सुंदरी ट्री इज अ वेल नोन ट्री दैट ग्रो इन द सुंदरबंस। सुंदरबंस एरिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्री ग्रो होती है वो है सुंदरी ट्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन करने से मतलब ट्रीज को कट डाउन करने से कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे? आंसर इज, deforestation causes many problems: soil getting washed away, flood, landslide, reduced rainfall and reduction of oxygen in air.
सॉइल गेटिंग वॉश्ड अवे, मतलब अगर प्लांट्स के रूट्स सॉइल को नहीं पकड़ेंगे तो वो वॉश अवे हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा सॉइल का, करेक्ट। देन फ्लड आएंगे, पूर आएगा, क्योंकि अगर ट्रीज एंड प्लांट्स है तो वो वाटर के फ्लो को स्लो डाउन कर देता है, मगर ट्रीज और प्लांट नहीं है तो वाटर फोर्सफुली अगर फ्लो होता है तो उससे जो है सॉइल बहकर चली जाएगी, फ्लड आएगा। नेक्स्ट लैंडस्लाइड्स, माउंटेन एरिया में ट्रीज अगर ग्रो होते हैं तो वो उन सॉइल को फर्मली, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ के रखते हैं। ट्रीज नहीं है तो क्या होगा, बहुत बारिश होगी या ऐसा कुछ होगा तो वो लैंड जो है वो टूट के नीचे जो रोड्स होते हैं जिसका ऊपर हम व्हीकल्स चलाते हैं, उन रोड्स पर सॉइल या लैंड का बड़ा सा हिस्सा आकर गिर जाएगा और वो रोड ब्लॉक हो जाएगा, तो लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम हो सकते हैं। देन रिड्यूस्ड रेनफॉल, मतलब रेनफॉल भी बहुत कम आएगा अगर ट्रीज एंड फॉरेस्ट नहीं है तो। एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, और एयर जो हम आजू बाजू में फील करते हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ट्रीज से ही बनता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ई, व्हाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेट अप बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों बनाई है? आंसर इज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट to protect trees, animals and birds. इससे trees, animals और birds ये सारे के सारे protected रहेंगे, और ये सारे जो है वो हमारे natural resources है, तो it is our duty to protect our natural resources. Next question F, why is the government trying to protect wildlife and forest? क्यों गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है? हाउ विल दिस हेल्प अस? इससे हमें क्या फायदा होगा? आंसर इज, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट विल हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा, क्योंकि जितना भी हम उसे प्रोटेक्ट करें, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ऑक्सीजन रिन्यू करने का काम फॉरेस्ट करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स होंगे तो वाइल्ड एनिमल्स से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि वो दूसरे हार्मफुल एनिमल्स को खा जाते हैं। फॉरेस्ट के एरिया में क्लीन करने का काम कोई नहीं करता है, मगर वो एनिमल्स खुद ब खुद करते हैं। साइंस में आपने ये सीखा होगा कि जो एनिमल्स मर जाते हैं, ये ईगल, वल्चर, ये सब आकर उन्हें खा जाते हैं, तो फॉरेस्ट अपने आप क्लीन हो जाएगा। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर बहुत डर्टी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा सब होगा ना। तो ये एनिमल्स जो है वो एरियाज को क्लीन भी रखते हैं। और ट्रीज और फॉरेस्ट से क्या बेनिफिट्स होते हैं ये तो आपने देखा ही होगा। तो इस वजह से हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। I am sending a PDF which is CW work, which I want you to complete in your CW with good handwriting and no spelling mistakes. Here we come to the end of the chapter along with the syllabus of SA1 exam. तो यहाँ तक आपकी SA1 एग्जाम में included है। तो I want you to go through all the chapters thoroughly and learn everything properly. So hope to see you good next time. Bye.